اسلام کی بہار بہار شریعت۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم آپ کا نعمان بن ثابت اکیڈمی میں استقبال کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان ہم نے پورا مکمل کر لیا تھا۔ اب آئیے ہم غسل کی طرف بڑھتے ہیں کہ غسل میں کتنے فرض ہیں، غسل میں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے، کیسے اس کا کرنے کا طریقہ ہے اور اس کے کیا کیا مسائل ہیں، ان سب کو انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ وضو ہے اور غسل ہے، ان چیزوں کا سابقہ ہمارا زندگی میں اپنے روزمرہ کی زندگی میں پڑتا رہتا ہے، تو ان چیزوں کے مسائل جاننے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور یہ ایک اہم رول ہماری زندگی میں نبھاتے ہیں۔ اگر ہمیں غسل کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہوگا، غسل کا سنت طریقہ معلوم نہیں ہوگا، غسل کے فرائض معلوم نہیں ہوں گے، کتنے فرائض ہیں، کون کون سے فرائض ہیں، اس کے کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا، تو پھر ہم غسل نہ جانے کیسے الٹی سیدھے طریقے سے کریں گے۔ اب اس حالت میں اگر ہمارا غسل ہو گیا تو اچھی بات ہے، اور غسل نہیں ہوا تب پھر ہماری نمازیں بھی خراب جائیں گی، اور اس سے ہمارے اگر ہم نے قرآن چھوا، اگر نجاست کی حالت میں، نجس ہونے کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں ہم نے قرآن چھوا تو اس کا بھی گناہ پڑے گا، ہم مسجد میں گئے اس کا بھی گناہ پڑے گا۔ تو اس لیے غسل کا طریقہ تو ہر ایک مسلمان کو آنا ضروری ہے، اور اس کے مسائل بھی ہر ایک کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ تو چلیے غسل کا بیان شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اگر تم جنوب ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو۔ اور آگے فرماتا ہے حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ اور آگے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں جب تک غسل نہ کر لو، مگر سفر کی حالت میں کہ وہاں پانی نہ ملے تو بجائے غسل تیمم ہے۔ اب حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث میں اس کی کئی ساری حدیثیں آئی ہیں، بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہیں غسل کے بارے میں، لیکن ہم چند حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو ابتدا یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر نماز کا سا وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے، پھر سر پر 3 لپ پانی ڈالتے، پھر تمام جلد پر پانی بہاتے۔ اور انہی کتابوں میں سے یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کتابوں میں سے ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روی ہے، فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کے لیے میں نے پانی رکھا اور کپڑے سے پردہ کیا، حضور نے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر پانی ڈال کر ہاتھوں کو دھویا، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر استنجا فرمایا، پھر ہاتھ زمین پر مار کر ملا اور دھویا، پھر کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور منہ اور ہاتھ دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا اور تمام بدن پر بہایا، پھر اس جگہ سے الگ ہو کر پائیں مبارک دھوئے۔ اس کے بعد میں نے بدن پوچھنے کے لیے کپڑا دیا تو حضور نے نہ لیا اور ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے تشریف لے گئے۔ بخاری مسلم میں بروایت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انصار کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بعد نہانے کا سوال کیا۔ حیض کے بارے میں آپ جانتی ہوں گے، جو عورتوں کے خاص ایام آتے ہیں ہر مہینے میں، یعنی کہ جسے پیریڈ بولتے ہیں اور ماہواری بھی بولتے ہیں، اور اس کے نہانے کا سوال کیا، یعنی کہ حیض آنے کے بعد کے نہانے کا سوال کیا۔ اس کو کیفیت غسل کی تعلیم فرمائی، فرمایا کہ مشک آلودہ ایک ٹکڑا لے کر اس سے طہارت کر لے، اور عرض کی کیسے اس سے طہارت کروں؟ فرمایا اس سے طہارت کر۔ عرض کی کیسے طہارت کروں؟ فرمایا سبحان اللہ، اس سے طہارت کر۔ ام المومنین فرماتی ہے میں نے اسے اپنی طرف کھینچ کر کہا اس سے خون کے اثر کو صاف کر لے۔ امام مسلم نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنے سر کی چوٹی مضبوط گوندتی ہوں، یعنی کہ مضبوط باندھتی ہوں، مضبوط چوٹی ہوتی ہے یعنی سخت کر کے ٹائٹ کر کے باندھتی ہوں، تو کیا غسل جنابت کے لیے اسے کھول ڈالوں؟ فرمایا نہیں، تجھ کو صرف یہی کفایت کرتا ہے کہ سر پر 3 لپ پانی ڈال لے، پھر اپنے اوپر پانی بہا لے، پاک ہو جائے گی۔ یعنی جب کہ بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں، اگر اتنی سخت گندھی ہو کہ جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو کھولنا فرض ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلد کو صاف کرو۔ اب آگے چلیے ہم غسل کے مسائل کی طرف بڑھتے ہیں
تو गुस्ल के बारे में फरमाते हैं कि गुस्ल के फ़र्ज होने के असबाब बाद में लिखे जाएंगे, लेकिन पहले गुस्ल की हकीकत बयान की जाती है, यानी गुस्ल है क्या उसको बयान करते हैं कि गुस्ल के 3 जुज़ हैं, अगर उनमें से एक भी कमी हुई तो गुस्ल ना होगा। चाहे यूं कहो कि गुस्ल में 3 फ़र्ज हैं, जैसे कि कुल्ली करना, ये फ़र्ज है कि मुंह के हर पुर्जे, गोशे, होंठ से हलक की जड़ तक हर जगह पानी पहुंच जाए। अक्सर लोग ये जानते हैं कि थोड़ा सा पानी मुंह में लेकर उगल देने को कुल्ली कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगरचे ज़बान की जड़ और हलक के किनारे तक ना पहुंचे, यूं गुस्ल ना होगा, ना इस तरह नहाने के बाद नमाज जायज़ होगी, बल्कि फ़र्ज है कि दाढ़ों के पीछे, गालों की तह में, दांतों की जड़ में और दांतों की खिड़कियों में, ज़बान की हर करवट में, हलक के किनारे तक पानी बह जाना ज़रूरी है, यानी कि पूरे मुंह का कोना कोना उसमें पानी से तर हो जाना, पानी उस पर बह जाना ज़रूरी है। और आगे फरमाते हैं कि दांतों की जड़ों या खिड़कियों में कोई ऐसी चीज जो पानी बहने से रोके जमी हो तो उसका छुड़ाना जरूरी है। अगर छुड़ाने में जरड़ और हर्ज ना हो, जैसे छालिया के दाने, गोश्त के रेशे, और अगर छुड़ाने में जरड़ और हर्ज हो, जैसे बहुत पान खाने से दांतों की जड़ों में चूना जम जाता है, औरतों के दांतों में मस्सी की रीखें कि उनकी छीलने में दांतों या मसूड़ों की मजरत का अंदेशा होता तो माफ है। यूं ही हिलता हुआ दांत तार से उखाड़ कर या तार से उखाड़ा हुआ दांत किसी मसाले वगैरह से जमाया गया और पानी तार या मसाले के नीचे ना पहुंचे तो माफ है। या खाने या पान के रेजे दांत में रह गए, उसके निगहदाश्त में हर्ज है। हाँ, बाद मालूम होने के उसको जुदा करना और धोना जरूरी है कि जबकि पानी पहुंचने से माने हो, यानी कि मुंह में या दांतों की जड़ों में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिससे पानी रुकता हो, और अगर वो चीज आसानी के साथ छूट जाए जिससे तुम्हें नुकसान ना पहुंचे, कोई जरर ना हो, तब तो उसका छुटाना जरूरी है। लेकिन अगर उससे तुम्हें नुकसान पहुंचता है, तुम्हें जरर पहुंचता है, तो उसको छुटाना जरूरी नहीं, माफ है तुम्हारे लिए, ऐसे ही उसकी कुल्ली सही से कर लेना चाहिए। अब दूसरे फर्ज की बात करते हैं। गुस्ल का दूसरा फर्ज कौन सा है? नाक में पानी डालना, यानी दोनों नथनों का जहां तक नरम जगह धुल्ला और पानी को सूंघ कर ऊपर चढ़ाए, बाल बराबर जगह भी धुलने से ना रह जाए, वरना गुस्ल ना होगा। नाक के अंदर रीठ सूख गई है तो उसका छुड़ाना फर्ज है। नेज नाक के बालों का धोना भी फर्ज है, जो नाक में बाल जमते हैं उनका धोना भी फर्ज है, और उसमें अगर रेंट वगैरह जम गई है तो उसका छुटाना भी फर्ज है। और ब्लॉक का सुराख अगर बंद ना हो तो उसमें पानी पहुंचाना जरूरी है। फिर अगर तंग हो तो हरकत देना जरूरी है, वरना नहीं। यानी कि जो औरतें ये लौंग वगैरह पहनती हैं, अगर इसका सुराख इतना तंग है कि उसमें पानी नहीं पहुंचता है तो उसमें पानी पहुंचाना जरूरी है। और अगर उसमें लौंग वगैरह पड़ी हुई है और वो तंग है तो उसको निकाल करके उसमें पानी पहुंचाना जरूरी है, यानी। और अगर इतनी ढीली है कि हरकत दे करके पानी पहुंच सकता है तो हरकत दे करके पानी पहुंचाएं, और अगर इतनी ढीली है कि बगैर हरकत के पानी पहुंच सकता है तो एहतियात है कि हरकत दे लें, वरना ऐसे ही पानी पहुंच जाए तो कोई उसको जरूरत नहीं है हटाने की और ना ही उसको हरकत देने की। और तीसरा फर्ज है तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना, यानी सर के बालों से पांव के तलबों तक जिस्म के हर पुर्जे, हर रोंगटे पर पानी बह जाना। अक्सर अवाम बल्कि बाज पढ़े लिखे ये करते हैं कि सर पर पानी डालकर बदन पर हाथ फेर लेते हैं और समझते हैं कि गुस्ल हो गया। हालांकि बाज आज़ा ऐसे हैं कि जब तक उनको खास तौर पर एहतियात ना की जाए नहीं धुलेंगे और गुस्ल ना होगा। लिहाजा भी तफसील बयान किया जाता है कि आज़ाए वुज़ू में जो मवाज़े एहतियात हैं, हर उज़्व के बयान में उनका जिक्र कर दिया गया है, उनका यहाँ भी लिहाज जरूरी है। उनके अलावा खास गुस्ल की जरूरियात ये हैं, यानी सर के बाल गुंदे ना हो तो हर बाल जड़ से नोक तक पानी बहना, और गुंदे हों तो मर्द पर फर्ज है कि उनको खोल कर जड़ों तक पानी पहुंचाए बहाए, और औरत पर सिर्फ जड़ का तर कर लेना जरूरी है, लेकिन खोलना जरूरी नहीं। हाँ, अगर चोटी इतनी सख्त गुंदी हो कि बेखोले जड़ तरे ना होंगी तो खोलना जरूरी है। यानी कि बाज़ दफ़ा मर्द हजरात जो होते हैं वो फैशन के तौर पर चोटी वगैरह बांध लेते हैं, तो उनको चाहे उनकी चोटी ढीली बंधी हुई है चाहे सख्त बंधी हुई है, उनको चोटी खोलना ही पड़ेगा, उनको चोटी खोलना फर्ज है। लेकिन अगर औरत ने चोटी बांधी है तो अगर औरत की जो चोटी है वो इतनी ढीली बंधी हुई है कि जड़ तक पानी आसानी से पहुंच जाएगा तो उसको जरूरी नहीं खोलना। लेकिन अगर तंग है कि पानी पहुंचेगा ही नहीं बगैर खोले तो बालों को खोलना जरूरी है। और कानों में बाली वगैरह जेबरों के सुराख का वही हुक्म है जो नाक में नथ के सुराख का हुक्म वुजू में बयान किया, यानी कि तंग हो तो उसको हरकत दे लें, और अगर इतनी टाइट हो कि बगैर निकाले पानी पहुंचेगा ही नहीं तो उनको निकाल करके पानी पहुंचाएं। पानी पहुंचाना जरूरी है, फर्ज है। और आगे फरमाते हैं भौंगों और मूंछों और दाढ़ी के बाल का जड़ से नोक तक और उनके नीचे की खाल का धुलना भी फर्ज है, यानी कि जरूरी है। और कान का हर पुर्जा और उसके सुराख का मुंह, कानों के पीछे के बाल हटाकर पानी बहाए,
ठोड़ी और गले का जोड़ के बे मुंह उठाए ना धुलेगा। बाज़ दफ़ा लोगों की गर्दन मोटी होती तो यहाँ पर जो निशान वगैरह पड़ते हैं, तो जब तक ऐसे नहीं उठाएगा, जब तक के वहाँ पर पानी नहीं पहुंचेगा, तो उसको मुंह उठाना भी जरूरी है। और बगलें बे हाथ उठाए ना धुलेंगी। बगलें ऐसे जब चिपक जाती हैं तो पानी नहीं पहुंचता, तो बगलों को उठाना भी जरूरी है, हाथों को उठा करके बगलों को धोए। और बाजू का हर पहलू, पीठ का हर जर्रा, पेट की बेल्टें उठा करके धोए। यानी कि जब इंसान बहुत मोटा होता है तो यहाँ पर जो निशान बेल्टें पड़ जाती हैं चर्बी की वजह से, मोटी खाल की वजह से, तो उनमें भी पानी पहुंचाना जरूरी है। चाहे वो इधर उधर होकर के या हाथ डाल करके किसी भी तरीके से पानी पहुंचाए, लेकिन वहां पहुंचाना जरूरी है पानी। और नाफ को उंगली डालकर धोएं जबकि पानी बहने में शक हो। यानी कि जो हमारी नाफ होती है, तो इसमें अगर हमें शक है कि पानी नहीं पहुंचेगा, तो हमें जरूरी है कि हम उंगली डाल करके धोएं उसे। और जिस्म का हर रोंगटा जड़ से नोक तक, और रान और पेड़ों का जोड़ और रान और पिंडली का जोड़ जब बैठ कर नहाए, दोनों शरीर के मिलने की जगह खुसूसन जब खड़े होकर के नहाए। इन सारी चीजों पर, इन सारी जगहों पर, इन सब आज़ाओं पर पानी पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो गुस्ल नहीं होगा। यानी कि बस इतना समझ लीजिए कि सर के बाल से लेकर के पैर के अंगूठे तक, बीच पूरे जिस्म में कोई भी एक बाल की जड़, एक बाल की नोक भी सूखी नहीं रह जानी चाहिए। अगर सूखी रह गई तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। और आगे फरमाते हैं कि रानों की गोलाई, पिंडलियों की करवटें, ज़क्र उनसैन के मिलने की सतहें बेजुदा किए ना धुलेंगी। उनसैन की सतह ज़ेरी जोड़ तक, उनसैन की नीचे की जड़ की जगह, और जिसका खतना ना हुआ हो तो अगर खाल चढ़ सकती हो तो चढ़ा कर धोए और खाल के अंदर पानी चढ़ाए। औरतों पर खास एहतियातें जरूरी हैं। ढलकी हुई पिस्तान को उठा करके धोना, पिस्तान और शिकम के जोड़ की तहरीरें, फर्ज खारिज का हर गोशा, हर टुकड़ा नीचे ऊपर ख्याल करके धोया जाए। हर फर्ज दाखिल में उंगली डालकर धोना वाजिब नहीं, मुस्तहब है। यूं ही अगर हैज़ो निफास से फारिग होकर गुस्ल करती है तो एक पुराने कपड़े से फर्ज दाखिल के अंदर से खून का असर साफ कर ले, ये मुस्तहब है। और माथे पर अफशन चुनी हो तो छुड़ाना जरूरी है। बाल में गिरा पड़ जाए तो गिरा खोलकर उस पर पानी बहाना जरूरी नहीं। किसी जख्म पर पट्टी वगैरह बंधी हो कि उसके खोलने में जरर या हर्ज है, या किसी जगह पर मर्ज या दर्द के सबब पानी बहना जरर देगा, तो उस पूरे उज़्व को मसा करे, और ना हो सके तो पट्टी पर मसा काफी है। और पट्टी मौज़े हाजत से ज्यादा न रखी जाए, वरना मसा काफी न होगा। अगर पट्टी मौज़े हाजत ही पर बंधी है, मसलन बाजू पर एक तरफ जख्म है और पट्टी बांधने के लिए बाजू की इतनी सारी गोलाई पर होना उसका जरूरी है, तो उसके नीचे बदन का वो हिस्सा भी आएगा जिससे पानी जरर नहीं करता। तो अगर खोलना मुमकिन हो तो खोलकर उस हिस्से का धोना फर्ज है। और अगर नामुमकिन हो, अगरचे यूं ही कि खोलकर फिर वैसी न बांध सकेगा, उसमें जरर का अंदेशा है, तो सारी पट्टी पर मसा कर ले, काफी है। बदन का वो अच्छा हिस्सा भी धोने से माफ हो जाएगा। यानी कि जैसे कि हमारे हाथ पर चोट लगी है, जख्म है, इस साइड में जख्म है, तो उस पर पट्टी बंधी हुई है, तो पट्टी इंसान यानी डॉक्टर जब बांधेगा तो फिर उसे घुमा कर बांधेगा ना, बांधने में आसानी हो जाएगी। तो अगर जख्म यहाँ पर है तो उसने पट्टी पूरे हाथ पर बांधी है। तो अगर हम गुस्ल कर रहे हैं तो अगर पट्टी खोल सकते हैं तो हमारे लिए पट्टी खोलना जरूरी है, और उस जगह को छोड़ करके बाकी पूरे जो हाथ पर, जितने हाथ पर पट्टी बंधी हुई है, तो उस जख्म को छोड़कर बाकी हाथ पर धोना जरूरी है। अगर धोने में जरर है तो उसका मसा करना भी जरूरी है। लेकिन अगर ये अंदेशा है कि हमने पट्टी खोल ली और दोबारा पट्टी बांध नहीं सकते हैं और हमें पट्टी खोलना जरर भी देगा, तो फिर उस पट्टी के ऊपर भी मसा कर लेना चाहिए, उस पर पट्टी पर मसा किया जाएगा। और आगे फरमाते हैं कि जख्म या आशूब चश्म वगैरह हो और गुमाने सही हो कि सर से नहाने में मर्ज में ज्यादती या अमराज पैदा हो जाएंगे, तो कुल्ली करे, नाक में पानी डाल ले और गर्दन से नहा ले और सर के हर जर्रा पर भीगा हाथ फेर ले, गुस्ल हो जाएगा। और फरमाते हैं कि बाद सेहत यानी कि सही होने के बाद, मर्ज दूर होने के बाद सर धो डाले, बाकी गुस्ल की अदा की हाजत नहीं है। पकाने वाले के नाखून में आटा, लिखने वाले के नाखून वगैरह पर स्याही का जुर्म, आम लोगों के लिए मक्खी मच्छर की बीट अगर लगी हो तो गुस्ल हो जाएगा। हाँ, बाद मालूम होने को जुदा करना और उस जगह को धोना जरूरी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।